عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی سیلف توفیق شیخ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 7ویں جنرل سائنس کا سبق نمبر 10، جس کا نام ہے آفات کے دوران حسن انتظام۔ اس سبق کے سوالات اور جوابات، پیشکش توفیق شیخ۔ سوال نمبر 1، ہم میں سے مختلف کون ہے؟ الف، قحط، زلزلہ، بادلوں کا پھٹنا، ریل حادثہ۔ جواب ریل حادثہ۔ ب، خشک سالی، بہت ساری بارش، طوفان، سونامی۔ جواب خشک سالی۔ جیم، لاوا، گرم کیچڑ، راکھ، ٹڈی دل کا حملہ۔ جواب ٹڈی دل کا حملہ۔ دال، فصلیں بہہ جانا، فصلوں کو کیڑ لگنا، آتش فشاں کا پھٹنا، فصلوں کا جل جانا۔ جواب آتش فشاں کا پھٹنا۔ سوال نمبر 2، ان آفات سے بچنے کے لیے تدابیر بتائیے۔ الف، قحط، قحط سے بچنے کے تدابیر۔ نمبر 1، غذا اور پانی کو ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، زیر زمین پانی کی مقدار بڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بند بنانے چاہیے۔ نمبر 3، پانی کا دوبارہ استعمال کرنا چاہیے۔ بڑے پیمانے پر شجر کاری کرنی چاہیے۔ درختوں کی کٹائی روکنی چاہیے۔ نمبر 5، نامناسب حالات سے بچنے کے لیے گھروں میں غذا اور پانی کا مناسب ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ ب، بجلی گرنا۔ تدابیر، جب آسمان میں بجلیاں کڑک رہی ہو تو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نمبر 2، آسمان میں بجلیاں کڑک رہی ہو تو درخت، بجلی کے یا ٹیلی فون کے کھمبوں کے نیچے سہارا نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 3، بارش کے دنوں میں اونچے اور پہاڑی علاقوں میں نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 4، اپنے گھروں پر اور عمارتوں پر برقی ربا آلے لگانا چاہیے۔ جیم، طوفان۔ تدابیر، نمبر 1، جب تیز ہوائیں یا طوفان کے حالات ہوں تو گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ نمبر 2، طوفان میں درخت، بجلی کے یا ٹیلی فون کے کھمبوں کے نیچے سہارا لینا نہیں چاہیے۔ نمبر 3، طوفان میں گرنے کے بعد گھبرائیں نہیں، کسی محفوظ جگہ سہارا لیں اور اس جگہ کے بارے میں اپنے دوست یا رشتہ داروں کو ضرور خبر کر دیں۔ نمبر 4، طوفان میں گھرے لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ نمبر 5، طوفان کے بارے میں معلومات کے لیے ریڈیو اور ٹی وی پر آنے والی خبریں بھی دیکھیں۔ دال، بادل کا پھٹنا۔ بادل کے پھٹنے پر تیز اور موسلا دھار بارش ہوتی ہے اور چٹانیں کھسکنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ان حالات میں بچنے کے لیے تدابیر، ایسے حالات میں پہاڑوں کے دامن میں، ندی یا سمندر کے کنارے نہیں رکنا چاہیے۔ نمبر 2، ایسے حالات میں پہاڑی علاقوں سے دور محفوظ جگہ سہارا لینا چاہیے۔ سوال نمبر 2، جملے صحیح ہیں یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ الف، طوفان آنے والا ہے، یہ اطلاع راز میں رکھنا ہوتا ہے۔ جواب، یہ جملہ غلط ہے۔ وجہ، آنے والے طوفان کی اطلاع لوگوں کو دینی چاہیے تاکہ وہ آنے والے طوفان سے محفوظ رہنے کا انتظام کر سکیں۔ ب، آسمان میں بجلی چمکتے وقت تیرنے سے پرہیز کریں۔ جواب، یہ جملہ صحیح ہے۔ وجہ، بجلی چمکتے وقت برقی رو پانی میں سرایت کر سکتی ہے اور تیرنے والے کو بجلی کا جھٹکا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیم، آتش فشاں کے پھٹنے کو
टालना मुमकिन है। जवाब, ये जुमला गलत है। वजह आतिश फिशा का फटना ये एक कुदरती आफत है जो रोकी नहीं जा सकती। दाल, ज़्यादा बारिश की वजह से कहत पड़ता है। जवाब, ये जुमला सही है। वजह ज़्यादा बारिश की वजह से भी फसलें पानी के साथ बह जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं और इसे गीला या नम कहत कहते हैं। सवाल नंबर 4, ज़ेल के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, सुनामी किसे कहते हैं? वो किस तरह पैदा होती है? जवाब, सुनामी ये एक जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। सुनामी यानी साहिल समंदर पर आकर टकराने वाली समंदर की ऊंची ऊंची लहरों को कहते हैं। समंदर की तह में ज़लज़ले आने पर बाहर खारिज होने वाली तवानाई पानी को ऊपर की जानिब धकेल देती है। नतीजे में समंदर में मखसूस किस्म की लहरें बनती हैं। इन लहरों की रफ्तार 800 से 900 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है, लेकिन जब यह साहिली हिस्से तक पहुंचती है तो रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन इनकी बुलंदी बहुत ज़्यादा यानी 100 मीटर तक पहुंच जाती है। बे, बादल का फटना किसे कहते हैं? जवाब, बाज़ औक़ात बारिश लाने वाले बादल से नीचे आने वाला पानी बारिश की शक्ल में ज़मीन पर न गिरकर ज़मीन के ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से दोबारा आबी बुखारात में तब्दील होकर इसी बादल में समा जाता है। नतीजे में इस बादल में भाप का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तेज़ी से अमल तकसीफ की वजह से ज़मीन के एक ख़ास या छोटे हिस्से पर तकरीबन 100 मिलीमीटर फ़ी घंटा या इससे ज़्यादा रफ्तार से बारिश होती है। इसे बादल का फटना कहते हैं। जिम, आतिश फिशा के फटने से होने वाले असरात को वाज़ा कीजिए। जवाब, आतिश फिशा के फटने से होने वाले असरात दर्जा ज़ेल हैं। नंबर 1, लावा, भाप, गर्म कीचड़, गंधक जैसे कीमियाई मादे ज़मीन की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेकड़ियाँ और पहाड़ वजूद में आते हैं। नंबर 2, आतिश फिशा के ज़रिए खारिज होने वाली राख और गैसों के ज़रिए माहौल आलूदा हो जाता है। नंबर 3, कई बार आतिश फिशा की वजह से बारिश होती है। नंबर 4, गर्म हवा की वजह से दर्जा हरारत बढ़ता है। नंबर 5, गर्म लावे में जंगल बस्तियां दफन हो जाती हैं। दाल, बिजली के गिरने से जानी नुकसान टालने के लिए क्या तदाबीर है? जवाब, बिजली के गिरने से जानी नुकसान टालने के लिए तदाबीर। नंबर 1, जब आसमान में बिजलियां कड़क रही हो तो घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नंबर 2, आसमान में बिजलियां कड़क रही हो तो दरख्त, बिजली के या टेलीफोन के खंभों के नीचे सहारा नहीं लेना चाहिए। नंबर 3, बारिश के दिनों में ऊंचे और पहाड़ी इलाकों में नहीं जाना चाहिए। नंबर 4, ऐसे हालात में तैरने से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 5, अपने घरों और इमारतों पर बरकी रुबा आला लगाना चाहिए। सवाल नंबर 5, महाराष्ट्र में आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम के तहत सैलाब, चट्टानों के खिसकने के ताल्लुक़ से कौन सी तदाबीर की गई हैं?
जवाब, महाराष्ट्र में लोगों की ज़िंदगी और असासों की हिफाजत के लिए एक इदारा बनाया गया है। इस इदारे के तहत लोगों को तूफ़ान, ज़लज़ले, सैलाब के मुतालिक पेशगी इत्तलात दी जाती है। 1976 में सरकार ने कौमी सैलाब कमीशन कायम किया। इस कमीशन के ज़रिए सैलाब पर काबू पाने के खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। कौमी सतह से लेकर देही इलाके तक सैलाब पर काबू पाने का मंसूबा तैयार रखा जाता है। इस मंसूबे पर अमल करके सरकारी जानी माली नुकसान को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात करती है। जवाब जारी है बच्चों। बादलों के फटने या चट्टानों के खिसकने से लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचता है तो सरकार आर्जी पनाहगाहें फराहम करती हैं। आफत के दौरान सरकार मुतासिर लोगों को हर किस्म की मदद फराहम करने का मंसूबा अमल में लाती है। सवाल नंबर 6, आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम के ताल्लुक़ से आप अपने मकान में कौन कौन सी जांच करेंगे और क्यों? बच्चों, यह एक आज़ादाना सवाल है। इसके कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। इसके अलावा आपके जहन में जो आते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। जवाब, नंबर 1, बिजली के गिरने से अपने घरों की हिफाजत के लिए हम अपने घरों में बर के रुबा आला लगाएंगे। नंबर 2, ज़लज़ले के दौरान घरों को टूटने से बचाने के लिए मकानात पुख्ता और मजबूत बनाएंगे। मकानात की दीवारें, छत की हमेशा जांच करते रहेंगे। नंबर 3, घर में मौजूद बिजली की वायरिंग की हमेशा जांच करते रहेंगे ताकि बारिश या आंधी तूफ़ान के दौरान घर में कोई हादसा ना हो। बच्चों, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट आपके जहन में आते हैं घर की जांच से मुतालिक, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा ये 10वां सबक जिसका नाम है आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम, ये सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।